So today we will learn about the BAPI concept in SAP. So first we will learn about the BAPI concept in SAP. What is the meaning of BAPI? This is the acronym. The full form is Business Application Programming Interface, right? So full form of BAPI is Business Application Programming Interface. Whenever interface comes into the mind, whenever interface word comes into the mind, what we think it is just a mediator between two systems. It is just a mediator between two systems. So BAPI is a way by which you can expose SAP data to the third party or to the different SAP system. Clear? BAPI is a way to expose SAP data to the third party, and or you can use in the different way. How it will be like this. So let's consider this is your SAP system. This is your SAP system, right? This SAP system here, what will be there? This is your application layer. For this, there will be one database. This is your database, which will get associated with your application layer or SAP. And this database will get associated with your SAP system. Whatever transaction you will do into your SAP, it will come into the below database, right? So what is the advantage? What is the purpose? What is the use of BAPI? Whenever we want to expose SAP data or we want to create data in SAP, two things, two-way communication, that is expose SAP data, right? Or create data or change data. Clear? So we will create the BAPI for that purpose. How we will create and what is the purpose of that BAPI? BAPI is a program in BAPI is internally. Here you will write one RFC. RFC, if I say this is your SE37 program, right? SE37 function module. FM with RFC enabled. Clear? RFC means sir? Once you go and create the RFC, sorry, FM, there are three options, right? Normal, remote function, and updated. I think I have to show you. If you go in FM, see here, normal, remote, and updated. So whenever you are going to create any BAPI in SAP system, that function module must be remote enabled. So first you will create one RFC. RFC, if I say go to the function module and choose this option. Clear? Okay. Means RFC is a function module with the RFC enabled. RFC, how you will do the RFC enabled? You will choose this option, second option, right? So this is your RFC. Entire logic will be here. What we will take in as input, what you will give as an output, this all will be written here, right? And this RFC will be this. Yeah, ask me. Any question? Now, this RFC you will wrap with one business object repository. Clear? It is a BOR.
we say it business object repository. First, step first is what? We will create one FM with RFC enabled. Clear? Second, once our FM will give you desired output, what you will do? You will wrap that FM in the BOR. BOR is what? It is business object repository. The transaction code for the same is HWON. Right? Now, your RFC will interact with your database, and this is your SAP system. Here, this is your other SAP system, or this is your third party system. Third party matlab apart from SAP. And if you want to expose SAP data, then what you will do? You can expose the data through the RFC. If you want to send the data, you can do the same thing. And this RFC will get interacted with your corresponding database. So if you see this BAPI, now this will become a BAPI. This will become a BAPI. And this BAPI will responsible to interact with your database. Right? And it is also responsible to bring what we will do if we want to expose the data. First of all, in the FM, you will write the logic to get the data, and the same will be exposed to the other system or to the third party system. Point clear हुआ ये वाला? शुभांगी? So BAPI is a medium to expose SAP data to the third party, or if you want to do something with help of BAPI, you can do the to and fro communication from other SAP system or any third party system. But the BAPI execution will happen at your application layer, at your यहाँ पे आपकी BAPI चलने वाली है. Okay. Right? ये आपका खुद में एक SAP है. ठीक है, तो ये आप उसको डेटा एक्सपोज करोगे, डेटा क्रिएट करना है तो डेटा यहाँ क्रिएट करने का बनाओगे. आपको जो भी लॉजिक है, हाँ, अपना SAP का बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है? वी नेवर गिव डायरेक्टली एक्सेस टू आवर डेटाबेस. ये SAP में कभी पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल नहीं है मतलब वी नेवर फॉलो दिस कंसेप्ट. आप कभी ऐसा नहीं करते हो. कभी आपने SAP में कभी आप ऐसा नहीं देखोगे SAP में. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने दूसरे SAP सिस्टम को डायरेक्टली अपने डेटाबेस का एक्सेस दिया है और किसी थर्ड पार्टी सिस्टम को आपने डायरेक्टली अपने डेटाबेस का एक्सेस दिया है. आप कभी ऐसा नहीं करते हो. ये कभी भी रॉन्ग आर्किटेक्चर है. हमारा क्या कंसेप्ट होता है? हम अपने लॉजिक से डेटाबेस को टच करेंगे. ठीक है, एंड जो डेटा आएगा दैट वी विल. देखो, हमारा लॉजिक जब हिट होगा ना, तो ये हम डेटाबेस को हिट नहीं मार रहा है, ये हमको हिट मार रहा है, BAPI को हिट मार रहा है, एंड आवर BAPI इज हिटिंग टू आवर DB. Okay. We are not giving direct access to the database. The third party or the other SAP system will hit to our BAPI. Our BAPI will interact with the database and will do the desired stuff and then bring back data to SAP or create the data in SAP. Clear है? This is the concept of it. थर्ड पार्टी से डेटा पुल कर रहे, राइट? मतलब थर्ड पार्टी से रहेंगे, थर्ड पार्टी से हम उसको कॉल दे रहे हैं अपनी BAPI को. मतलब अगर हम पुल करना, हाँ, डेटा पुल कर रहे हैं सिस्टम से, तो हम पुश भी कर सकते हैं. मतलब जो भी क्या होगा, मतलब यहाँ से डेटा भेज भी सकते हैं और ला भी सकते हैं. हाँ, टू एंड फ्रो. ठीक है, अगर क्रिएट का होगा तो आपको भेजना पड़ता है. हाँ. ठीक है, अगर क्रिएट का केस है, जैसे कोई चीज आपको क्रिएट करनी है SAP सिस्टम में, तो आपको भेजना पड़ता है.
जैसे हम लोग Okay. कैसा है, दो SAP सिस्टम में कम्युनिकेशन कराते हैं आईडॉक से, तो हम आईडॉक से कम्युनिकेशन कराते हैं, तो हमारा आईडॉक जैसे ही आता है इधर, तो उसके पीछे सेल्स ऑर्डर या उसके पीछे वेंडर या वो कस्टमर बनता रहता है। जब हमारा दो SAP सिस्टम में आईडॉक से कम्युनिकेशन नहीं होता है, आईडॉक से, तो आईडॉक से जो भी डेटा आता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर का है, बराबर। चाहे वो वेंडर का है, तो जब वो अपने टारगेट में आता है, तो उसके पीछे वो हम लोग बैकग्राउंड लॉजिक लिख देते हैं कि डेटा आने के बाद बापी चला दो। तो वो क्रिएट, मतलब अपना मटेरियल हो, चाहे वेंडर हो, चाहे सेल्स ऑर्डर हो, वो हम लोग बनाते रहते हैं। क्लियर है? तो इट इज वर्किंग एज एन इंटरफेस इन योर सिस्टम। क्लियर है? हाँ। यहां तक ये कंसेप्ट क्लियर है ना, कि ये हम डेटा को एक्सपोज करने जा रहे हैं या क्रिएट करने जा रहे हैं, हम कभी भी अदर सिस्टम को डायरेक्टली डीबी एक्सेस नहीं देते हैं। वी नेविगेट थ्रू द बापी। ओके। ठीक है, दिस इज द मीन्स हमें वहां ऑब्जेक्टिव पे ऑफ द। चेंज भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं हाँ, अब जैसे मान डेटा। लो आप अगर टू एंड फ्रो है ना, अब मान लो आपको डेटा क्रिएट करना है, तो आप लॉजिक लिखोगे इसके अंदर ना, RFC के अंदर, हाँ तो वो क्रिएट करेगा। हाँ। ठीक है, अगर आप RFC के अंदर पुल करने का लॉजिक लिखोगे, तो वो पुल करेगा डेटा को। करेगा। हाँ। मतलब पुल और पुश होता है ना, पुश मतलब सेंडिंग डेटा टू डेटाबेस, पुल मतलब ब्रिंगिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस। ठीक है, तो आपका जो लॉजिक रहेगा वो लॉजिक चलेगा वहां पे, लेकिन डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस नहीं मिलेगा आपको, थर्ड पार्टी या अदर SAP सिस्टम को। दे हैव टू नेविगेट वाया बापी। ओके। ये पॉइंट क्लियर हो गया? हम्म। तो हमें इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करके बापी बनाना पड़ता है। तो बापी का पहले आपको ऑब्जेक्टिव समझा? हाय सर। हेलो? हाँ सर, एक बार बताएंगे क्या शॉर्ट हाँ में? हाँ, बता रहा हूं मैं। देखो, अभी आज का हमारा टॉपिक है बापी। इट मींस द फुल फॉर्म इज बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। If I take the word interface, it means interacting between two systems, right? Interacting between the multiple system. So what we will do, we will create the BAPI, and that BAPI has some definite task. That definite task will be performed by our BAPI. It can be the create something or read something or update something that can be done through the BAPI. Right? So BAPI, whenever we create, first of all, we have to create one function module with remote enabled. The first step of creating the BAPI is we will go in SE37, where we will create one FM, and the FM will be the RFC enabled. How we will do the RFC enabled? There will be one radio button. Once you will create this particular FM, you will choose this option. Right? Now, after creating that FM, you will release that FM and you will just wrap that particular FM in some BOR. What is BOR? BOR is a business object repository. The transaction code for the same is SWO1. It is just a class. BOR is nothing but a object oriented concept. That is a class. In class, there will be one method. That method will hit to your RFC. Clear हुआ? In BOR, there will be one method. The method will hit to your BAPI or RFC. Then this entire thing will known as the BAPI. Clear? Once you will expose, third party will call to your BAPI. The BAPI will perform the desired task which is written in your RFC. हमारा कंसेप्ट क्या होता है? We never give to third party or other SAP system. We never give direct access to our database. We provide the BAPIs, and the BAPI will perform the relevant task. They will hit to our BAPI, and the BAPI will perform the relevant task. ये पॉइंट क्लियर हुआ? प्रेरणा? हाँ सर। तो अभी इसके लिए हम पहले स्टेप मार्क करेंगे, उस स्टेप के बाद धीरे धीरे कुछ इसमें प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब आप जैसे बापी बनाने जा रहे हो ना, तो कुछ चीजें जैसे प्रोटोकॉल होता है ना, प्रोटोकॉल इन द सेंस कि अगर ऐसा बोला है तो आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, पहले मैं आपको एक बापी एग्जिस्टिंग बापी दिखा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा।
देखो जैसे एक बापी है ये, तो बापी मैंने क्या बोला, ये एक फंक्शन मॉड्यूल होगा, राइट। तो आप जाके इसको देखो, अब यहां जाके देखो इसको, ये देखो, ये थंब रूल है, ये आरएफसी होना ही चाहिए, ठीक है। अब इंपोर्ट आपका जो भी है वो इंपोर्ट बनाओ। एक्सपोर्ट में ये ध्यान रखना, आपको एक्सपोर्ट में ये पैरामीटर मैंडेटरी है, ठीक है। और इसका नाम रिटर्न ही होना चाहिए, इसका टाइप बापी रेट 2 या रेट 1 होना चाहिए। ये मतलब एकदम थंब रूल है, ये करना ही है। और इंपोर्ट में क्या है सर? इंपोर्ट आप चाहे जो भी, आप अपना इंपोर्ट चाहे जो भी बनाइए, आप चाहे मटेरियल नंबर लेके मटेरियल का डेटा दो, या सेल्स ऑर्डर लेके सेल्स ऑर्डर क्रिएट करो। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट चेंजिंग टेबल, ये सारे आपके पास कंट्रोल है, आप चाहे जो करो, ठीक है। लेकिन एक्सपोर्ट में ये आपका रिटर्न वाला ये मैंडेटरी है, इसी नाम से होना चाहिए, रिटर्न नाम से। और ये स्टैंडर्ड बापी होते हैं क्या, मतलब ये स्टैंडर्ड है, ये आपका स्टैंडर्ड है। तो मैक्सिमम स्टैंडर्ड ही होते हैं क्या? हाँ मैक्सिमम स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन मान लो आपने कोई जी टेबल बनाया है, ठीक है, आपके जी टेबल को एक्सपोज करना है मान लो किसी थर्ड पार्टी को, ठीक है। हो सकता है जैसे हमने जी टेबल बनाया, उस जी टेबल का डेटा हमें पुल करके दिखाना है किसी को, ठीक है। तो एट दैट टाइम वी विल क्रिएट द बापी। अच्छा, जहां हमें कोई स्टैंडर्ड चीजें नहीं मिल रही है या स्टैंडर्ड अवेलेबिलिटी नहीं है, एट दैट टाइम वी विल क्रिएट आवर कस्टम बापी, ठीक है। तो कस्टम बापी की जब बात आएगी तो हमें ये तरीके से जानना है। या तो अगर हमें मतलब चाहिए तो हम लोग इसको कॉपी करके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कॉपी करके मॉडिफिकेशन करोगे तो आप इसको मतलब इसके लॉजिक को चेंज कर सकते हो। अच्छा, तो फिर इसमें से हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये मतलब अभी जैसे ये मटेरियल डिलीट के कुछ कर रहे हैं मतलब हाँ, इसमें, हाँ, हाँ। तो मुझे ये नहीं समझा कि जो थर्ड पार्टी सिस्टम है या लीगसी सिस्टम है या दूसरा कोई सिस्टम है, हाँ। उसमें क्या हो रहा है, या तो फिर अपने सिस्टम में क्या होने वाला है इसमें? हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे ये है, यहाँ से मान लो डेटा आ रहा है, मेरा थर्ड पार्टी सिस्टम है, ठीक है। मेरा थर्ड पार्टी सिस्टम से मेरे पास डेटा आ रहा है, एंड आई हैव टू क्रिएट द सेल्स ऑर्डर, ठीक है। तो थर्ड पार्टी मुझे केवल डेटा दे रहा है जो जो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने में लगने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, उसको पकड़ के अपनी बापी सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने वाली बापी को हिट करा दूंगा। ओके, लेकिन फिर उसमें ये भी तो होगा कि मुझे किस फॉर्मेट में थर्ड पार्टी सिस्टम से डेटा चाहिए, या हाँ तो मतलब वो क्या? इसके लिए आप इनपुट आउटपुट डिजाइन करोगे। अच्छा, आपके अपने पास ये प्रोविजन है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या चाहिए आपको। ओके, तो ये इंपोर्ट में मतलब मैं ये जो सीक्वेंस में दूंगा तो इसी सीक्वेंस में मुझे सामने हाँ, वाले को वो डेटा लगेगा, तो आपको उसके बाद सामने वाला ये देगा। अब देखो, अब जैसे ये मटेरियल है, ये देखो ये तीनों ऑप्शनल है, ठीक है। ठीक है। ये तीनों ऑप्शनल है, तो अब वो इसको बगैर भी चलेगी बापी ये। अच्छा, ऑप्शनल मतलब अगर पास कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ठीक वो भी। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शनल मार्क किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो लगने वाला है वो आप डिजाइन कर लो, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका सोर्स कोड यहाँ लिखा रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। हाँ, तो जब भी आप बापी बनाओगे ना, आपको क्या करना है कि जैसे हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं, हम मटेरियल का डेटा एक्सपोज करेंगे थर्ड पार्टी को, ऐसा एग्जांपल बनाएंगे। कि किसी एक वो हमको कोई तो नंबर पास करेगा, उस नंबर के बेस पे हम मटेरियल का डेटा एक्सपोज करेंगे। तो ऐसा कोई एग्जांपल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले हमें सबसे पहला काम होगा आरएफसी बनाना होगा, ठीक है। तो पहला हमारा काम क्या है, आरएफसी। अभी हम पहले स्टेप जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे स्टेप मार्क करते जाएंगे। तो पहला काम है क्रिएट आरएफसी, ठीक है। आप जाओगे यहाँ पे, यू विल गो हियर। हाँ, आपको नाम जो है ना, देखो ये नाम पहला ऐसा होना चाहिए, ये भी एक बोल दो प्रोटोकॉल है, ठीक है। जेड बापी। आप एक काम करना, जैसे मैं बता रहा हूं ना, देखो मैं एक गाइडलाइन बता रहा हूं आपको ना, आप इस गाइडलाइन का अपोज करके जाना। अपोज करके मतलब आप ऐसा नाम मत देना, ठीक है।
तो आप देखना आपको क्या प्रॉब्लम आती है। जेट बापी गेट मैट डेटा, ठीक है, क्रिएट। अब यहां तक कोई तो एक फंक्शन ग्रुप में डालना पड़ेगा इसको। ये इसी 38 से ही गए क्या हम लोग? 37। अच्छा, 37। अब मैं किसी भी एक थर्ड उसमें डाल देता हूं इसको ना, किसी भी एक ग्रुप में डाल दे रहा हूं इसको मैं। ये जो ग्रुप लिया सर, वो आपने किसी भी ग्रुप में डाला तो वो मैंडेटरी है कि किसी भी में चलेगा या कुछ नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक में, देना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स रहता है। यहां तो मैंने कुछ भी ले लिया ना। फंक्शन मॉड्यूल विल ऑलवेज लैंड इन सम फंक्शन ग्रुप। तो आपको किसी ग्रुप में असाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे मुझे इसको रिमोट मार्क करना पड़ेगा, क्लियर है। अब मैं इंपोर्ट बोलूंगा, मुझे इंपोर्ट क्या चाहिए उससे, मैट नंबर टाइप, और क्या बोलूंगा उसको, मैटनर। और जब भी आप आरएफसी बनाते हो ना, ये आपको पास बाय वैल्यू लेना ही पड़ता है, अदरवाइज वो एरर देगा। अच्छा। ठीक है, ये ऑलवेज पास बाय वैल्यू होना चाहिए। अब अभी जैसे मैंने बोला एक्सपोर्ट में क्या करेंगे हम लोग, एक्सपोर्ट में फिक्स है रिटर्न टाइप। अगर उसका टाइप आपको याद है, ये रिटर्न लिया मैंने, ठीक है। मेरा आउटपुट टेबुलर है, तो मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा मैट डेटा, यहां पे टाइप लूंगा और यहां पे मारा अंडरस्कोर टीटी, रेडीमेड स्ट्रक्चर है मेरे पास, ठीक है। अब मैं यहां पे उसका लॉजिक लिखूंगा, यहां पे लॉजिक, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मारा इनटू, हमारा टेबल क्या है, मैट इनटू टेबल मैट डेटा इनटू टेबल मैट डेटा वेयर मैटनर इक्वल टू कंट्रोल F2, पास बाय वैल्यू करना है, कहीं तो पास बाय वैल्यू रह गया है, कंट्रोल F2, इन आपसे ओनली पैरामीटर विद पास बाय वैल्यू आर अलाउड, ठीक है, कंट्रोल F2, मैंने पास बाय वैल्यू किया था उसको, एक्सपोर्ट चेंजिंग पास बाय वैल्यू, सॉरी एक्सपोर्ट में करना था पास बाय वैल्यू, ये ठीक है, कंट्रोल F2, कंट्रोल F3, ये मैंने एक्टिवेट किया, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट एक्टिवेटेड हुआ, क्लियर हुआ, इस पॉइंट तक किसी कंफ्यूजन नहीं। पहला मैंने क्या किया कि आई हैव क्रिएटेड वन आरएफसी। देखो अभी जैसे मैंने जेड बापी नाम दिया है, तो ये स्टेप आपको आगे समझेगा कि ये क्यों दिया है, ठीक है। इनिशियल विद द जेड बापी दिया है। अब मैंने अपना इनपुट और उसके बेस पे आउटपुट डिजाइन कर लिया एंड रिटर्न पैरामीटर उसी नाम से मैंने डिजाइन करके रख दिया। अब फिर यहाँ मेरा लॉजिक है कि आप मुझे नंबर दोगे, मैं उसको उसके अगेंस्ट जो है डेटा दूंगा आपको। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक रैंडम कोई एक मटेरियल नंबर ओपन करता हूँ, ये 16 पकड़ो ना। अभी इसका आप टेस्टिंग कर लो यहाँ पे इसको कि ये चल रहा है क्या। तो यहाँ पे आप मैट नंबर पास कर दो और इसको F8 कर दो, ठीक है। तो आपका डेटा यहाँ पे 0 एंट्री आ रहा है ना, एक मिनट रुको, 16 इसको कैसे पास करना है, ऐसे पास करना पड़ेगा।
where Mattner equal to select star from Mara into table mat data where Mattner equal to this. इसको मैं जरा नीचे रोकता हूँ ना. ये मेरा ब्लैंक आ रहा है, MA नंबर ये मेरा ब्लैंक आ रहा है. अगर मान लो मैंने इसको यहाँ पे 16 पास किया, ठीक है, F6 करता हूँ. नहीं आ रहा ये. ग्रुप में गए, मैट नंबर टाइप मैटनर, ये टेबल्स में गए, मारा टीटी. एक मिनट, मारा टीटी कितने क्या है? मारा टीटी अपना टेबल टाइप होगा, टेबल टाइप है, इसके अंदर मारा स्ट्रक्चर है, मारा यहाँ पे मैटनर है. ठीक है, अभी पहले मेरे पास मारा का ये वैल्यू कितनी आ रही है ये देखना है. फिट किया मैंने ये, इसको मैं यहाँ रोकता हूँ. सोर्स कोड F6 आया ना, ये देखो आ गया ना. ठीक है, F8 ये देखो एक एंट्री आ गई. ठीक है, ये हमारा लॉजिक लिखा हमने. तो अभी हमने पहला स्टेप देखो क्या किया, यहाँ पे क्रिएट RFC. ठीक है, इसमें आपका जो मैंडेटरी स्टेप है वो क्या है, वो आपका स्टेप है कि RFC नेम विद Z. हाँ, सेकंड क्या है, डिजाइन रिटर्न पैरामीटर. ये दो एकदम मैंडेटरी स्टेप है जो आपको करने हैं. इसमें अंदर आप कुछ भी करो. ये पॉइंट क्लियर हो गया? शुभांगी? हाँ सर. तो ये पॉइंट अपना क्लियर है कि पहला काम है RFC बनाना, जो हमने देखो यहां बना दिया. FM बनाना, जो बनाया. अब इसको हमें इस FM को रिलीज करना पड़ता है. स्टेप थर्ड क्या है, रिलीज दिस FM. लेकिन ये रिलीज करना ना कि मतलब आपका लॉजिक फ्रीज हो चुका है, मतलब अब आपको कोई चेंज नहीं करना है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस FM को रिलीज करेंगे. कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, ये डिसेबल है. कौन सा, वो रिलीज वाला कहाँ पे, ये ना. एक मिनट, मैं इसको भी चेंज मोड से हटाऊंगा ना. चेंज मोड हटा दिया. ठीक है, अभी देखो चेंज मोड से हटाएंगे तो नहीं है.
कंट्रोल एस, कंट्रोल F2, कंट्रोल F3 एक्टिवेट किया और यहाँ से बाहर आए, इसमें फंक्शन मॉड्यूल रिलीज, ठीक है, रिलीज, ठीक है, इसको आप रिलीज करोगे। देखो अभी बोल रहे ना, ऐसा क्यों हो रहा है जानते हो क्या? ओनली यूजर मॉब 59 कैन रिलीज द फंक्शन मॉड्यूल। ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि मैंने इसको अपने फंक्शन ग्रुप में नहीं डाला। समझे ना ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मैंने जो फंक्शन ग्रुप चूज किया ना, वो फंक्शन ग्रुप मॉब 59 नाम का यूजर बनाया होगा। ये जो फंक्शन ग्रुप मैंने डाला ना, रैंडम मैंने कोई जो डाल दिया ना, यहाँ पे मैंने कोई रैंडम डाल दिया था ना फंक्शन ग्रुप। ये फंक्शन ग्रुप क्या था मेरा अपना? Z A ये यहाँ पे आप डबल Z A B ये वाला, ये फंक्शन था मेरा, ये फंक्शन ग्रुप था मेरा, मैंने ये रैंडम डाल दिया। अब देखोगे ना तो ZAB का जो ऑनर है वो होगा मॉब 59। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, ये जो है SEAT से जाके आप चेक कर सकते हो कि इसका ऑनर कौन है, तो वो मॉब 59 ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है ना सर पर्सनल रिस्पॉन्सिबल, कहाँ पे? वहाँ पे एक बैक, ये ऊपर, तो ये इसने ही बनाया है, तो यही रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो अभी कैसा है कि ये मान लो रिलीज, अभी हम क्या करते हैं ना, इसको इसमें लेके जाएंगे HWO1 में। अभी एक नया टी कोड है, BOR का टी कोड है ये HWO1, ये बिजनेस ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी एक रिपोजिटरी बनाओ, ZMAT डेटा, एक अपना BOR ऑब्जेक्ट बनाएंगे, से क्रिएट, ठीक है। अब आपको ZMAT डेटा है ऑब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे उसका नाम डाल दो, आप यही नाम डाल दो, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे स्टार, ठीक है। यहाँ पे आपको एक TR में डालो, नहीं तो ये प्रॉब्लम करता है। मुझे अपना पैकेज बनाना चाहिए था यार, गलती किया मैंने, उसी के पैकेज डालते। सब उसके पैकेज का नाम क्या था? ZZ ABID तो था, ABID does not exist। या कुछ तो था ना, एक मिनट, ZZ_ABID ना, ये एक्टिवेट भी नहीं किया हुआ इसने पैकेज। एक ही दिख रहा है टेस्ट, ठीक है। ये रिक्वेस्ट मांग रहा है, ठीक है। ये आपका देखो यहाँ पे इंटरफेस, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, ये सब बन के आता है, ठीक है। ये जो बन के आया है वो डिफॉल्ट आया है, ठीक है, ये अभी तक डिफॉल्ट आया है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन होगा, क्रिएट विथ फंक्शन मॉड्यूल एज टेम्पलेट, यस, ठीक है। आपके फंक्शन मॉड्यूल का नाम, वहां पे क्या है फंक्शन मॉड्यूल का नाम? ZBAPI गेट मैट डेटा, ये यहाँ पे आप जाके पास करिए, ठीक है। ठीक है, ये ZBAPI गेट मैट डेटा, देखो इस नाम का मेथड बनाएगा वो, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस नाम का वो मेथड बनाएगा, ये डिटेल दे रहा है, ये सब फेच होके आ रहा है कहां से? आपके FM से, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट करो इसको। डू यू वांट टू जनरेट ए टेम्पलेट ऑटोमेटिकली फॉर द पहले इसको एक काम करो, कैंसिल करता हूं मैं, ये आपका मटेरियल यूज्ड अबव, ये आपका देखो इसके नीचे ये बापी कॉल होगा, बराबर है।
ये आपका देखो बापी यहाँ पे, ये आपका एक एफएम बना, सॉरी एक मेथड बना, ये मेथड आपके बापी को कॉल करेगा, आपके एफएम को कॉल करेगा, ठीक है, ये आपके एफएम को कॉल करेगा। अभी इसको आप बोलो सेव, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। इसके बाद ये आपका बापी जो बना, मतलब जो आपका बीओआर बना, इसको जनरेट करना पड़ता है, ठीक है, जनरेट करो। ये जो रेड में ये क्या चीज है? ये डिफॉल्ट बन के आते हैं, एग्जिस्टिंग चेक और डिस्प्ले। ओके, ये किसी भी बीओआर में ना ये दो चीजें डिफॉल्ट बन के आती हैं। तो उनका कुछ पर्पस नहीं होता है क्या? नहीं, पर्पस मतलब अब मैं आपको बताता हूँ उसका सिस्टम कॉल क्या होता है, वो बताता हूँ। ठीक, कंटेंट एरर्स, कंट्रोल F2, एक मिनट, यहाँ प्रोग्राम का ऑप्शन होगा, देखो कहीं तो, चेक डिस्प्ले बेसिक डेटा, चेक किया मैंने, ये देखो ये आपको टेम्पलेट बना के आया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये रेडीमेड कोड पूरा लिख के दिया है, ये पूरा देखो, जैसे आपका एफएम, आपका जो एफएम है वो किसी मेथड के अंदर से कॉल हो रहा है, राइट। तो वो मेथड के अंदर का देखो पूरा उसने क्या लिख दिया, पूरा देखो बापी बिगिन मेथड जेट समथिंग चेंजिंग कंटेनर, ये पूरा उसने खुद बना के दिया आपको। देखो ये मेथड की शुरुआत है, ये मेथड का अंत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा रेडीमेड बना के कोड दिया है इसने पूरा। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे डेटा आपको केवल अपना सेट कर देना है, मैट, या आप मैट नंबर टाइप मैटनर, ठीक है, और आईटी डेटा टाइप मारा अंडरस्कोर टीटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या पास करोगे, मैट नंबर, सॉरी यहाँ पे आप पास करोगे मैट नंबर, यहाँ पे आप पास करोगे आईटी डेटा, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे आपका वो पास होगा कंट्रोल एक्स, यहाँ पे एक रिटर्न बनाओ, आईटी रिटर्न टाइप बापी रेड 2, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो आईटी रिटर्न, यहाँ पे लिखो आप आईटी डेटा, देखो हो गया ये जनरेटेड, ठीक है, बाहर आए। अभी इसको जनरेट करो, मॉडल ऑब्जेक्ट टाइप कैन नॉट बी जनरेटेड व्यू डिटेल्स, बोलेगा पैकेज नहीं डाला, यू ट्राई जनरेट ऑब्जेक्ट रिलीज स्टेटस मॉडल्ड, ठीक है। अभी इसका स्टेटस चेंज करो, यहाँ जाओ ऑब्जेक्ट टाइप, अदर ऑब्जेक्ट टाइप नहीं, एडिट गो टू, यूटिलिटीज सेटिंग्स, ऑब्जेक्ट टाइप डिस्प्ले चेक सेव विदाउट चेकिंग जनरेट एडिट। हाँ देखो अभी ये ऑब्जेक्ट टाइप में गए, फिर इसके बाद एडिट चेंज रिलीज स्टेटस ऑब्जेक्ट टाइप मॉडल्ड, ठीक है। फिर इसके बाद यही फिर उसी में जाके एडिट इम्प्लीमेंटेड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट टाइप, ऐसा एडिट ऑब्जेक्ट टाइप रिलीज, ठीक है। अब इसके बाद फिर से दूसरा वाला पकड़ना है, कंपोनेंट वाला मॉडल, इम्प्लीमेंटेड
फिर इसके बाद रिलीज्ड, ये रिलीज्ड, ठीक है। ये फिर कंट्रोल एस, अब आप यहाँ पे जाके इसको जनरेट करो। देखो जेड मैट डेटा जनरेटेड सक्सेसफुली, ये हो गया। अब स्टेप 2 देखो, यहाँ तक क्लियर था, क्रिएट RFC नेम विद जेड बापी, डिजाइन रिटर्न विद पैरामीटर, रिलीज द FM, ठीक है। स्टेप 2 क्या था, क्रिएट BOR, ठीक है, एंड इन BOR क्रिएट मेथड, क्रिएट मेथड। अब आप ये मेथड क्रिएट करोगे, जैसे ही मेथड क्रिएट करोगे वो एक बोलेगा आपको अपने FM का नाम पास करना होगा। FM का नाम पास करोगे वो ऑटोमेटिक आपको एक डिजाइंड फंक्शन मेथड ये नाम बना के देगा, जेड बापी गेट मैट डेटा, ठीक है। आप उसको एंटर मारोगे, वो आपका मेथड यहाँ इसके अंदर कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिक कॉल होगा। तो वो आपको तो एक ऑटोमेटिक पैटर्न खोल के देगा, पैटर्न में उसका आपको राइट साइड वाला सेट कर देना है। जैसे ये सेट किया, प्रोग्राम में गए, देखो ये राइट साइड वाला मैंने सेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करोगे, इसको सेव करोगे और हर एक 3 स्टेप करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट टाइप में गए, एडिट में गए, चेंज रिलीज स्टेटस में ऑब्जेक्ट टाइप, मॉडल, इंप्लीमेंट, रिलीज, पहले मॉडल फिर इंप्लीमेंट फिर रिलीज, फिर दूसरे वाले में जाएंगे, मॉडल इंप्लीमेंट रिलीज, ये करेंगे। इसके बाद फिर इसको जनरेट करेंगे, आपका BOR क्रिएट हो जाता है, ठीक है। BOR क्रिएट हुआ, आपका बापी, मतलब ये देखो क्रिएट BOR एंड इन BOR, अब क्या होगा, थर्ड पार्टी विल कॉल टू योर बापी, बापी डायरेक्टली नहीं कॉल होगी, BOR कॉल होगा। BOR का मेथड आपके RFC को कॉल मारेगा, ठीक है। BOR का मेथड आपकी RFC को कॉल मारेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? कुछ थोड़ा सा याद करने वाले स्टेप लग रहे हैं आपको इसमें? हाँ, वो थोड़ा BOR के जो स्टेप्स है ना, जनरेट हाँ, वगैरह, वो पूरा वो कैसा है कि आपको वो एक बार जनरेट करना पड़ता है। जब ये जनरेट हो जाएगा ना, इसका मतलब आप देखो, जब आप ये मॉडल ये करने का मतलब क्या होता है कि आपने मॉडल बनाया है, इंप्लीमेंट करके रिलीज किया है, ठीक है। अब जब भी चेंज होगा ना, ये स्टेप फिर से रिपीट होगा। जैसे मान लो कल को आपको कोई लॉजिक में चेंज बोलता है, ठीक है, तो इसको रीजनरेट करना पड़ता है। ओके, तो हर बार, हाँ, रीजनरेट मतलब कि वो फ्रीज करने के बाद रीजनरेट करो। रिलीज कर रहे हो ना आप, उसको रिलीज कर रहे हो, रिलीज मतलब कि अब इसमें चेंजेस को फ्रीज कर रहे हो आप। तो ये आपका फाइनली एक बापी, ये इतनी सारी स्टोरी के बाद आपका एक बापी बन जाता है। ये आपका एक बापी बना है, ये आपका एक बापी बन गया है। अभी ये लोग पूछते हैं कि बापी और नॉर्मल फंक्शन मॉड्यूल में क्या नॉर्मल मतलब बापी बनाओ या RFC बनाओ, तो इसमें आपको इंटरव्यू में डिफरेंस पूछता है। सर इसमें हाँ, हमने ये असाइनमेंट कहाँ किया इनका, मतलब FM का और BOR का? SWO1 में जाके ना, जैसे देखो आपको, जैसे मैं एक दूसरा मेथड बनाता हूँ, मैं उसी मेथड को दोबारा मैप करता हूँ ना, तो मैं क्या बोलूँगा, क्रिएट, ठीक है, ये रहा। अब आपको बोलेगा फंक्शन मॉड्यूल नेम, तो मैंने क्या पास किया, यही फिर से पास कर दिया, ठीक है। अब वो बोलेगा रिजर्व है, एंटर मारो फिर से, देखो वो अब इसको दूसरा नाम दे रहा है, जेट बापी गेट मैट डेटा 0, तो इसको आप 1 कर दो। ये देखो ये मैपिंग है, ये वाली मैपिंग है जो आप बोल रहे हो ना, वो देखो ये है। क्लियर हुआ? हाँ हाँ क्लियर। क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना कि इस बापी के अगेंस्ट ये मेथड है। बराबर। तो ये आप पहले आप बापी का नाम डालोगे ना, ऑटोमेटिक वो आपको मेथड का नाम सजेस्ट करता है अंडरस्कोर माइनस करके। तो वो उसके आगे आप अगर चाहो तो अपना जी लगा के कुछ भी नाम दे दो आप, फिर आप इसको आप करोगे, एक मेथड यहां बन के आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो आपको इंटरव्यू में क्या पूछता है कि अगर आप नॉर्मल RFC से भी तो डेटा पुल कर सकते हो, ठीक है, बापी की ही क्यों जरूरत है, ठीक है।
नॉर्मल आरएफसी को हम लोग बोलते हैं ये डायरेक्ट सिस्टम कॉल है। नॉर्मल आरएफसी मतलब डायरेक्ट सिस्टम कॉल होता है। बापी का मतलब आपका डायरेक्ट सिस्टम कॉल नहीं होता है, आपका बीओआर का मेथड कॉल होता है। बीओआर का मेथड आपके एफएम को हिट मारता है और एफएम से लॉजिक पुल होके आता है। मतलब ये वो डिफरेंस है जो आपको दिखता नहीं है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस आपका टेक्निकल होता है। टेक्निकल डिफरेंस मतलब सिंटैक्टिकल डिफरेंस। जैसे आरएफसी में मैंडेटरी नहीं है कि आप रिटर्न नाम का पैरामीटर बनाओ, आप किसी भी नाम से बना सकते हो या मत बनाओ, वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन बापी में एकदम मैंडेटरी है, आपको उसका नाम रिटर्न ही रखना है। ये पॉइंट क्लियर है? जैसे देखो आपसे क्या पूछेगा कि आप नॉर्मल आरएफसी से भी तो डेटा पुल कर सकते हो ना। तो नॉर्मल आरएफसी क्या है, आपको वो डायरेक्ट सिस्टम कॉल होता है। आप क्या करोगे कि बापी बनाओगे तो वो इनडायरेक्ट सिस्टम कॉल है। इट विल हिट टू योर बीओआर, बीओआर मेथड विल हिट टू योर बापी। सेकंड सिंटैक्टिकल डिफरेंस क्या है कि आपको आरएफसी में मैंडेटरी नहीं है कि आप रिटर्न पैरामीटर बनाओ या ना बनाओ, लेकिन बापी में आपको रिटर्न पैरामीटर बनाना ही पड़ता है। मगर अगर आप जब नहीं बना, देखो मैंने क्या हुआ ना, मैंने आपको पॉजिटिव वे दिखाया है, बराबर। अगर आप थोड़ी भी गलती करते, आप इसको जेड बापी की जगह कुछ और नाम देते, तो आपको वो आगे बढ़ने नहीं देता, यहां से यही नहीं बढ़ने देगा आपको। मतलब जब आप अंदर जाके बनाओगे ना, यहाँ पे ऐसे क्रिएट करोगे ना, तो अब जब आप डालोगे ना, वो यहीं पे आपको फेलियर करेगा। अभी वो बताएगा कि जेड बापी से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, और रिटर्न नहीं होगा तो आपको बता देगा। ये सारे प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देगा, वहां पे प्रॉब्लम नहीं देगा आपको, इस लेवल तक कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। जब आप बीओआर रिपोजिटरी में मैप करोगे उसको ना, तब वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तब वो चेक करेगा प्रोटोकॉल कि आपकी बापी के प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको एक मतलब हैप्पी पाथ दिखाया ना, मतलब मुझे पता था, मैंने जेड बापी नाम से बनाया। आप जेड अंडरस्कोर समथिंग करके बनाते तो आपको प्रॉब्लम करता है वो। क्लियर है? तो आप एक बार निगेटिव करके देखो, आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है। कुछ कंफ्यूजन इसमें? तो अभी मैं स्टेप को रिपीट करता हूं, एक बार आप देखो। बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बापी, it is an interface between it is an interface within the multiple system, and it will provide the data, or it is a way to expose the SAP data to the third party, or you can interact with the SAP database via RFC logic, via BAPI. So you can do the to and fro communication with help of BAPI, and BAPI is a RFC enabled function module. BAPI is a RFC enabled function module. Whenever you will enable any function module as an RFC, so at that time you have to take all the import export parameter pass by value. Otherwise it will give the error. Whenever you are marking anything as a RFC, import and export must be passed by value, and you have to design the return parameter in the BAPI with the name return, and the type will the BAPI ret2 or ret1. So this is the fixed protocol which you have to follow once you are going to create with the BAPI. So along with that, you will put entire logic in your source code, and after that you will wrap your BAPI in the BOR. The transaction for the BOR repository is HWO1. This is the BOR repository. Here you will go and create your own object. Here you will go and create your own object. Under that you will create one method. In method you will call to your BAPI, provided it is following the BAPI protocol. Means the name will start with ZBAPI, and it should contain the return parameter in their structure. After that, once you will map this particular FM in your under some method, you have to set the pattern. You have to set the right side of the programming part, in which you will mention the material number is like this and data is like this and something is like this. So you will build all the logic there. Along with that, after completing this, you will just model, implement and release the object type and object repository type. After that, you will generate the BOR object. Your BAPI will get created. This is the entire step for the BAPI. अब इसमें एक भी स्टेप में आप कहीं भी गड़बड़ करोगे ना, तो BAPI क्रिएट नहीं होगी।
जब तक आपको एक सक्सेसफुल मैसेज नहीं आ जाता यहाँ पे कि ये सक्सेसफुल जनरेट हुआ है। ठीक है, अब आपकी बापी कंज्यूम करने वाले स्टेज पे आ चुके हो, अब आप बापी के साथ प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा लॉजिक था बापी के पीछे का। क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन? इसमें हम लोग ये थर्ड पार्टी से कनेक्शन कैसे करेंगे कि वो थर्ड पार्टी से जो कनेक्शन है ना, थर्ड पार्टी के पास एपीआई होता है। थर्ड पार्टी के पास यहाँ पे एपीआई होती है। अगर वो जावा है तो जावा की रहेंगी, डॉटनेट है तो डॉटनेट की रहेंगी। तो वो हाँ, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, यहाँ की जो है ना, यहाँ पे वो एडॉप्टर बोलते हैं कि आप इस सिस्टम को जावा एसएपी सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर उस उनके पास एक मेथड होता है जिसमें आपको वो अपनी बापी का नाम देना पड़ता है। तो वो आपकी बापी और डिजायर्ड पैरामीटर कि भाई मैट नंबर से पास करो, तो आपकी बापी को हिट आएगा। तो ये मतलब कोई भी एसएपी सिस्टम हो या कोई लीगेसी सिस्टम हो, कोई भी एसएपी उसके लिए यही प्रोसेस है, यहाँ से कॉल होगी। तो ये जो SM59 से जो हम लोग कनेक्शन सेटअप करते हैं वो ये वाला है या ये कुछ SM59 से आप क्या करते हो ना, SM59 से आप क्या करते हो, SM59 से आप एक वो बनाते हो अपना कनेक्शन, RFC कनेक्शन। RFC कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपका दो मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है ना, जैसे इसमें कम्युनिकेशन हो रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ पे जब कनेक्शन होता है ना, तो ये दोनों RFC कनेक्टेड सिस्टम बोले जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हो ना, यहाँ पे आप कनेक्शन बनाते हो और ये सिस्टम इसको कॉल करता है कनेक्शन के थ्रू। तो ये जो आप बता रहे हो ना, ये SAP टू SAP कॉल के लिए है, SM59 टाइप 3 कनेक्शन, SAP टू SAP। ठीक है, तो ये आपका RFC कनेक्शन, मतलब टू सिस्टम्स आर RFC या रिमोटली कनेक्टेड बोलते हैं हम लोग। टू सिस्टम्स आर, जैसे आपका IDOC होता है ना, IDOC क्या होता है, इस SAP से आके इस SAP में आता है, राइट? तो ये दोनों RFC इनेबल्ड होते हैं, मतलब ये सिस्टम RFC कनेक्टेड है। इसके लिए आपका IDOC एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होता है। तो फिर ये जो काम है ये बेसिस वाले करते हैं? ये बेसिस वाला करेगा आपके लिए। ओके, तो फिर हमने अगर मतलब चलो मान लो अगर बापी के केस में अगर हमने बापी बना ली तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो नेक्स्ट स्टेप कॉलिंग का रहेगा। ठीक है, तो कॉलिंग, अगर ये थर्ड पार्टी java.net है ना, तो उनके पास एपीआई होती है। वो अपना एपीआई यूज करके आपकी बापी को कॉल करेंगे। नहीं बट लेकिन अगर मान लो मुझे जैसे एसएपी सिस्टम में अपने को कुछ जैसे माइग्रेशन के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं कि कोई मतलब थर्ड पार्टी सिस्टम का लीगेसी सिस्टम का डेटा एसएपी में लाते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग मतलब जैसे हाई वॉल्यूम है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि बापी राइट करते हैं। हाँ, तो बराबर है। तो वो मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ठीक है चलो एसएपी सिस्टम में तो हमने बापी वगैरह क्रिएट कर ली, बीओआर सब कुछ क्रिएट कर लिया, तो उसके बाद में हम लोग क्या उनसे मतलब जो एक डिजायर पर्टिकुलर फॉर्मेट है उसमें मंगवाएंगे डेटा और वो अपलोड करेंगे, ऐसा क्या? हाँ, उसमें जैसे आपके में बापी में मैट नंबर नाम से है ना, मैट अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, तो आपको उसको बताना पड़ता है मैट अंडरस्कोर नंबर नाम से ही मटेरियल नंबर भेजना। अच्छा, अगर वो मान लो भेजता भी है ना, गलत भेजता है ना, वो एरर मारेगा। अच्छा, वो इसको थर्ड पार्टी क्या बताएगा कि इस नाम का कोई पैरामीटर नहीं है। तो वो देखो, उसको ये नहीं पता चलेगा कि देखो जब तक आप बताओगे वो उसको समझेगा नहीं। ठीक है, आप बताओगे उसको एमिटी अंडरस्कोर नंबर नाम से है, ठीक है, तो जब वो एमिटी अंडरस्कोर नंबर नाम से पास करेगा तभी सक्सेसफुल हिट होगा। क्योंकि दो सिस्टम को वैलिडेट नहीं कर सकते आप ना, दो अलग अलग सिस्टम है। तो जो थर्ड पार्टी है ना, वो आपके एसएपी कनेक्टर्स यूज करेगा। एसएपी कनेक्टर की उनके पास एपीआई होती है, ठीक है, उस एपीआई में वो लोग अपना आरएफसी का नाम पास करते हैं और पैरामीटर के साथ पास करते हैं, तो वो आपके एफएम को मतलब आपके बापी को हिट चला जाता है और उनको रिटर्न में डेटा आता है। तो उनके तरफ बहुत सारे प्रोविजन होते हैं, वो एक्सएमएल में लेंगे या जेसन में लेंगे, ऐसे करके उनके पास टेक्निक होती है कि जो रिटर्न आ रहा है वो एक्सएमएल में ले लेंगे या जेसन में ले लेंगे। मतलब अगर अब आप एज एन डेवलपर देखो ना, तो हमारा काम है बापी बना के एक्टिवेट करके देना, ठीक है,
फिर उसके बाद थर्ड पार्टी वाले को इतना हेल्प करना है, देखो भाई ये बापी का नेम है और ये तुम्हारा पैरामीटर का नेम है, ठीक है। तो उसको जब वो हिट मारेगा ना, रिटर्न पैरामीटर पूरा दिखता है उसको। फिर उनके पास ऑप्शन होता है कि उसको वो XML में लेते हैं या JSON में लेते हैं। तो ये सब उनके पास टेक्निक होती है, उनके टूल की टेक्निक है, वो लोग उसमें कर लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन? सॉरी, मतलब मैं हाँ बोलिए बोलिए। इसमें BDC जो हमने मतलब सीखा था, तो इसमें और उसमें फिर मतलब डिफरेंस कैसा आएगा? हाँ, डिफरेंस क्या है, देखो जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि आपको अगर आपको किसी BDC भी डेटा क्रिएट कर सकती है, बापी भी डेटा क्रिएट कर सकती है, ठीक है। अगर आपके पास बापी मिल रहा है किसी चीज को क्रिएट करने का, यू हैव टू गो विद द बापी। ऐसा नहीं कि बापी थर्ड पार्टी से ही कॉल होगी, बापी तो एक FM है, आपके लोकल सिस्टम पे भी चलेगी, बराबर। ठीक है। अगर मान लो मुझे मटेरियल क्रिएट करने का बापी है मेरे पास, आई विल नॉट गो विद द BDC, आई विल गो विद द बापी। अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का बापी नहीं है, पहले तो ये सब चीजें गूगल से मिल जाएंगी, आपको नहीं मिलेगा बापी तो आप उसका रिकॉर्डिंग करके BDC से डेटा पोस्ट करोगे। मतलब मैंने 95% देखा है बापी है, 5% ही ऐसा होगा जिनकी बापी ना हो, तो वो बहुत ही रेयर ट्रांजेक्शन है जहां पे आपको BDC लगती है। तो दोनों टेक्निक से डेटा पोस्ट हो सकता है। इफ यू हैव ऑप्शन ऑफ बापी, यू विल गो विद द बापी। और इसमें जैसे मतलब एक शायद ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बापी एंड BDC, तो हाँ। फिर इसमें हम लोग मतलब क्या बताए कि हाँ, तो जो बापी और BDC में डिफरेंस है ना, तो BDC में क्या है कि BDC के स्टेप ही डिफरेंट है। पहला क्या है, आपको ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग चाहिए होता है, बराबर। ठीक है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग के बाद आप उस पर प्रोग्राम बनाते हो, क्लियर है। बापी में केवल आप डायरेक्टली FM को पैरामीटर पास करते हो, मतलब जो इसको चाहिए वो पास करते हो, देन एंटायर लॉजिक विल बी रिटन इनसाइड। जैसे बापी मटेरियल क्रिएट, मुझे केवल ये चीजें पास करनी है, उसका डिस्क्रिप्शन पास करना है, उसका मटेरियल ग्रुप पास करना है, उसका ये 3-4 चीजें पास करनी है, एंड इट विल क्रिएट द मटेरियल इनटू द SAP सिस्टम। ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हाँ, बापी से डेटा रीड होता है, आपका BDC से डेटा रीड नहीं होता है। जैसे आप BDC चलाओगे ना, BDC हमेशा क्रिएट करने के लिए बनाते हो ना, क्रिएट करने के लिए बनाते हैं। हाँ, बापी से रीड एंड राइट दोनों हो जाएगा। मतलब BDC मतलब केवल डेटा राइट ही करती है। और भी क्वेश्चन? आप लोग ये सारे प्रैक्टिकल घर में करके देख रहे हो ना? हाँ, दैट विल गिव यू द, मतलब वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। सर जैसे BDC भी क्रिएट डेटा ही करता है और बापी भी क्रिएट डेटा करता है, तो ये अपने मतलब हमारी चॉइस रहेगी क्या कि ये हमारा मतलब अगर बापी है तो बापी जाना है। ओके। देखो जैसे बापी मटेरियल क्रिएट करता है, ठीक है। अब मैंने आपको BDC से मटेरियल क्रिएट करके दिखाया है, हाँ, लेकिन यू विल गो विद द बापी। और आपको बापी रिटर्न में बराबर एरर देगा। जैसे मान लो आपको BDC कैसे एरर देता है कि जैसे मैं क्या करता था, बीच बीच में देखो एक आध जगह पे मैंने अपना मटेरियल ग्रुप में गलत डालता था, याद है? रिकॉर्डिंग में तो वो अपने को वहां पे रोक देता था, राइट? हाँ, तो जैसे आप मटेरियल ग्रुप 0001 है, आपने 0009 पास कर दिया, एंड 0009 आपके BDC में एग्जिस्ट नहीं करता है, मान लीजिए, सॉरी आपके मास्टर लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपको बापी भी रिटर्न पैरामीटर में टाइप E एरर देगी। आपको रिटर्न पैरामीटर दिखाता हूं मैं इसका, इसके रिटर्न पैरामीटर देखो, ये बापी ना, हाँ देखो इसका, देखो नंबर टाइप देखो, जैसे वहां नहीं आ रहा था बापी में अपने को, हाँ, 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 अगर ई आ गया इसका मतलब आपने हिट मारा, कुछ तो गड़बड़ आया है, वो ई के करस्पॉन्डिंग एरर पढ़ लो क्या है। तो ये देखो ये चारों मैसेज आते हैं ना लिख के अपने,
तो ये मैसेज आपको पता चल जाएगा कि ये मतलब 0001 नाम से कोई भी मटेरियल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब आपने गलत पास किया था, आपको 0001 पास करना है। ठीक है, सेम वे इसलिए रिटर्न बनवाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे आपने बापी लिखा है, मैंने रिटर्न का लॉजिक तो कुछ लिखा ही नहीं है अभी यहाँ पे। अब जैसे मान लो उसने एक ऐसा नंबर पास किया जिसके नाम पे कोई मटेरियल नहीं है, बराबर है, ऐसे नंबर पास किया जिसके नाम पे कोई मटेरियल नहीं है, उसने पास कर दिया XYZ नाम का कोई मटेरियल नहीं है, तो मेरा ये क्वेरी फेल हो जाएगा। हाँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा साइज ऑफ आरसी इक्वल टू 0, मतलब नॉट इक्वल टू 0 हो, तो मैं क्या लिखूंगा, अंदर जाके लिख दूंगा कि बापी रेट टू हाइफन टाइप इज इक्वल टू ई एंड बापी रेट टू हाइफन टेक्स्ट इज इक्वल टू मटेरियल डज नॉट एग्जिस्ट विद दिस पर्टिकुलर नेम। ठीक है, तो आपको बापी रेट टू में जाएगा डेटा, ठीक है, तो वो एरर आप चला जाएगा कि इसका मतलब इस नंबर का कोई मटेरियल नहीं है। अभी जब आपका मटेरियल जाएगा तो अब आप एस कर देना वहां पे, मतलब इसके साथ साथ एस भी भेज देना, एस और यहां लिख देना सक्सेसफुल। समझा ना ये चीज शिवांगी? हाँ। मतलब इसको यूज करना है हम लोग को ना, इसको जब रिटर्न होगा सक्सेसफुल तो एस यहाँ पे टाइप में एस सेट कर देंगे, कुछ फेल होगा तो टाइप में ई सेट कर देंगे, और उसके बेस पे आपको रिटर्न जाएगा। तो वो क्या चेक करेगा, रिटर्न सक्सेसफुल आ रहा है, रिटर्न सक्सेसफुल आ रहा है तो वो जो है आगे अंदर जाके डेटा देखेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? तो बापी आपको इंटरव्यू में जरूर पूछेगा ये सब चीजें। अब फिर वो पूछेगा बापी बनाया है क्या, तो आपको बताना पड़ेगा कि अच्छा बापी बनाया है तो किस चीज का बनाया है, ये भी पूछेगा। ठीक है, बापी बनाया तो किस चीज का बनाया है, तो आपको यही बोल देना होगा कि मेरे यहाँ एक कस्टम टेबल था, ठीक है, वो कस्टम टेबल का डेटा एक्सपोज करना था थर्ड पार्टी को। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने मटेरियल क्रिएट करने का बापी बनाया है। ठीक है, या तो हाँ, बापी तो बहुत बड़ा होता है, मतलब उसमें ये तो मतलब मैंने जितनी देखी है, मतलब बापी इज अ जंगल ऑफ कोड। उसमें कोड के अंदर कोड के अंदर कोड के अंदर कोड होता है, तो हाँ वो तो बहुत टीडियस है। मतलब क्या टीडीएस उसमें मतलब 10,000 की लाइन की बापी मैंने देखी है। मैं आपको वो छोटी छोटी दिखाऊं? नहीं सर, छोटी भी होगी, मैं वो नहीं बोल रही, बट अगर वो जैसे आपने बोला नहीं कि देखो, अगर मान लो जैसे कॉम्प्लेक्स लॉजिक है तो बड़ा ही होगा ना। नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है ना प्रेरणा कहने का, कि जैसे देखो, जैसे आपसे पूछेगा आपने कभी, देखो नॉर्मली मैंने तो बापी कस्टम लॉजिक के लिए बनाया है, जैसे आपसे पूछेगा आपने कभी बापी बनाया है क्या, तो आप बोलोगे यस, फिर पूछेगा किस चीज़ का बनाया है, तो अब आप ये तो नहीं बोल सकते मैंने मटेरियल क्रिएट करने का बापी बनाया है, या सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने का बापी बनाया है, या मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट वेंडर क्रिएट करने का, कस्टमर क्रिएट करने का बापी बनाया है। ये सब तो सिस्टम में है ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मेरे पास एक कस्टम टेबल था, उस कस्टम टेबल को पॉइंट करके डेटा एक्सपोज करना था, तो डेटा एक्सपोज करने के लिए मैंने वो बापी बनाया था, एंड थर्ड पार्टी विल कंज्यूम दैट बापी इन देयर कोड। ठीक है, तो जब आप कस्टम बोल दोगे ना तो वो लॉजिक पूरा आपके ऊपर हो जाता है कि कस्टम के ऊपर काम, मतलब कस्टम के ऊपर बनाया है बापी। ठीक है, हाँ, फिर आप उसको कुछ भी किसी डायरेक्शन में घुमा सकते हो। ठीक अगर है। आप बोलोगे मैंने मटेरियल क्रिएट करने का बापी बनाया तो पूछने का तो होता ही ऑलरेडी सिस्टम में, क्योंकि अब जैसे कस्टम है तो उसका डेफिनेटली उसका सिस्टम में तो बापी होगा नहीं, बराबर है, तो आपको ही लिखना पड़ेगा उसका लॉजिक। तो आप ऐसा बोल के वहां पे, मतलब फिर उसके बाद पूछेगा बापी आरएफसी में डिफरेंस क्या है, वो आपको पता है। फिर आपको मतलब सिंथेटिकल डिफरेंस और टेक्निकल डिफरेंस, सिंथेटिकल डिफरेंस में आपको बापी का नाम ऐसा ही होना चाहिए और उसका रिटर्न पैरामीटर होना चाहिए। टेक्निकल डिफरेंस में डायरेक्ट आरएफसी आपका डायरेक्ट सिस्टम कॉल होता है, बापी आपका इनडायरेक्ट कॉल होता है, योर बीओआर विल कॉल टू पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल।
ठीक है। हम्म, फिर वो बोलेगा कि जैसे बापी का एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो देखो जब भी आप बापी बनाते हो ना, जो भी सिस्टम में बापी है, जैसे मान लो अगर मैं एक बापी से डेटा क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, जैसे ऐसा पकड़ो, जैसे मान लो मैं मटेरियल को चेंज कर रहा हूं, ऐसा सोचो किसी बापी से, ठीक है। कोइंसिडेंटली कोई और बंदा भी उसी मटेरियल को चेंज करने जा रहा है, तो पहला वाला बापी उसको रोक देगा, मतलब उसके अंदर ऑब्जेक्ट लॉकिंग हैंडल हो रही है ऑटोमेटिकली, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो हम लोग ने लॉक कंसेप्ट नहीं पढ़ा था, लॉक कंसेप्ट, हाँ, कि somebody is modifying, जैसे मान लो किसी एक पर्टिकुलर चेंज मोड में मैंने चेंज मोड की बापी चलाई है, चेंज वाली बापी चलाई है, मैं किसी मटेरियल को मॉडिफाई कर रहा हूँ, मॉडिफाई मतलब उसका कुछ चीजें चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। द मोमेंट somebody will call to that particular material number, दूसरा वाला बापी उसको रोक देगा, पर जो पहला एग्जीक्यूट हो रहा है ना वो उसको रोक देगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी उस नंबर पे लॉक लगा दिया है, विच इज ऑटोमेटिकली हैंडल्ड बाय द बापी, आपको ऐसा हैंडल नहीं करना है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। और कुछ कंफ्यूजन इसमें? तो एक बार आप लोग ये सारा प्रैक्टिस करके देख लो कि आप बापी के मतलब एंड पॉइंट तक पहुंच जाते हो, तो मतलब बापी क्रिएट हो गई आपकी, सक्सेसफुल आपका बीओआर जनरेट हो जाएगा। ओके, देखो लॉजिक यही कॉम्प्लेक्स रहेगा कभी भी, विच इज एज गुड एज अबैब कोड। जब भी बापी की बात आएगी ना, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक कहां जाएगा, कॉम्प्लेक्स होगा तो लॉजिक यहीं बैठेगा ना आपका, बाकी जो इनर आउटर है वो फिक्स है, वो वैसे ही चलना है। ठीक है, फिर इतना आप लोग कर लोगे? हाँ, ठीक है सर। ओके। सर मुझे वो कुछ पूछना था तो मैं आपको। हाँ, फिर मैं आपको मैं 6 बजे के बाद कॉल करता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, हम्म। ओके। हाँ, एक चीज और, आप लोग आपको जो जो टॉपिक रिवीजन का है ना, आप मुझे एटलीस्ट उस ग्रुप पे व्हाट्सएप डाल दो ना, तो आई विल मैनेज अकॉर्डिंगली। जितने क्लासेस। जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं अभी तक, आपको जो भी पढ़ाए हैं, उसमें आपको जो भी कंफ्यूजन लगता है कि नहीं इसमें ये वाला पार्ट एक बार फिर से देखना है, या ये वाला पार्ट फिर से करना है एक बार, या इसको प्रैक्टिकल टर्म में और देखना है, तो आप जस्ट ड्रॉप ए मैसेज ऑन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो आई विल प्लान अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे रहेगा मैं बताते जाऊंगा। ओके, ठीक है सर। ठीक है, ओके, चलिए फिर। ठीक। बाय। बाय।